What is an inquiry letter? इंक्वायरी जो वर्ड देखते हैं उससे क्या समझ में आता है? कौन सा लेटर होगा ये? कोई जानकारी जो तुम्हारे पास नहीं है, उस जानकारी को तुम जानने के लिए कहीं लेटर, बिजनेस लेटर लिखते हो तो वो उसको कहा जाता है लेटर ऑफ इंक्वायरी. फॉर एग्जांपल, एडमिशन इंक्वायरी लेना, एडमिशन लेना है उसके लिए इंक्वायरी, किसी होटल बुक करना है वहाँ की इंक्वायरी, कहीं लंच ऑर्डर करना है वहाँ की इंक्वायरी. any information which you want to get is called business letter. ये बहुत कॉमन चीज़ है. कुछ परचेज करना है, कुछ ख़रीदना है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं. कहीं एडमिशन लेना है, कहीं फ्रेंच क्लास करना है, कहीं स्पेनिश क्लास, लैंग्वेज क्लास करना है, तो आप उसको यू विल राइट अ लेटर फर्स्ट, और पहले पूछेंगे आप. दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि आगे करना क्या है. ठीक है, ये सब समझ में आए थे. तो आपने इंक्वायरी लेटर तो नहीं लिखा था, लेकिन आप इंक्वायर करने आए थे. Isn't it? That is C. Okay. This is an inquiry letter. Date. सैम्पल्स रहता है तो आप समझते हैं कि क्या है ये. Write a letter to the organization, any organization, XYZ, whatever, in about 100 words. Ask for the programs you can join to help the disabled. ये भी एक इंक्वायरी लेटर है कि आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, जो कि पहले आपने उसको पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना कि ये प्रोग्राम है एंड हाउ कैन यू हेल्प. तो लेटर का फॉर्मेट सेम रहता है, चाहे वो इंक्वायरी लेटर हो, वॉट एवर लेटर हो. इंक्वायरी अबाउट कैट कोचिंग क्लासेस, ये क्या इंक्वायरी है? हाँ, somebody please read this. Inquiry letter about cat coaching classes. Read. This is with reference to your advertisement in the Times of India for cat coaching classes. I have passes the degree. One minute, edit करते हैं इसको. I have passed. I have passed the degree examination with as the main subject and me on joining your institute for the coaching classes. अच्छा, यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ. हाँ, ये तो मैंने फॉर्मेट डाल दिया था कि जिसको अपने सूटेबिलिटी, कोई सेकेंड सेमेस्टर में है, कोई थर्ड सेमेस्टर में है, कोई कहीं है, तो यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स. लाइक आई हैव पास्ड, आपने क्या पास किया उसका डाल सकते हैं एज द मेन सब्जेक्ट, एंड आई एम कीन ऑन जॉइनिंग योर इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग क्लासेस. पढ़ो, तुम इसको पढ़ो. Kindly let me know about the procedure of applying for the qualifying test and its date. I would also like to know the duration of the coaching program, the duration and the number of classes per week, along with the available mode of classes. Information about the fees, payment, and the study material is highly appreciated. Could you please send me a copy of your prospectus? I would like to enroll as soon as possible. Your early response will enable me to decide fast. Thank you. समझ में आया? अब इसी सैम्पल, इसी स्टाइल में आप कुछ और इंक्वायरी कीजिए. लिखा है आपने, बोलिए. शेयर करिए आप, प्लीज शेयर. स्क्रीन शेयर करो ना. Screen share to screen.
दे रहा है। किसका है ये? अभिषेक पास तुम दिखा रही थी ना। इसने हमको वो कर दिया। टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, पढ़ो उसको। विवेक विहार कॉलोनी, गोला रोड, पटना, 11 October 2021. The principal, NIT College, Patna, 8,01,000. Subject: inquiry for college admission in MCA. Respected sir, my name is Abhishek Kumar Singh. I study in Siemens College, Patna. I am a student of BCA. I want to take admission in MCA. So, please provide me admission procedure for taking admission in your college. Please also provide fee details for the college and also about hostel facility. Yours truly, Abhishek Kumar Singh. ये फॉर्मेट कौन सा है? ब्लॉक स्टाइल तो नहीं लग रहा है ये आपका? लेफ्ट साइड में ऐसा सारा कुछ लेफ्ट ले जाइए, सारा लेफ्ट। ठीक है, ठीक है। यस, स्टार्ट। और सासाराम रोड, विक्रमगंज रोड, ताज पिन कोड 80/22 08 October 21 to the manager, DRC office, Mokar, Sasaram. Subject: regarding inquiry about student credit card. Respected sir, my name is Kamini Kumari. I would like to inform that process and documents required for student applying a student credit card. I am a student of Siemens College, Patna, and unable to fee of course BCA. Hence, I request you to give me description for applying a student credit card. ये हैंड्स इतना आगे क्यों लिखा हुआ है? हैंड्स तो होना चाहिए लेफ्ट साइड में एकदम ना। Yes, फॉर्मेट रॉन्ग है yes, थोड़ा सा. और फिर आई भी रॉन्ग हो गया। एकदम सब लेफ्ट तो सब लेफ्ट, फॉर्मेट इज रॉन्ग। Applying a student credit card for the 3 years to complete my studies. I hope you will show kindness. Thank you. Your truly, Kamini Kumari. फॉर्मेट ठीक करो पहले। ब्लॉक स्टाइल ऑल शुड बी अलाइंड टू लेफ्ट। एनीबडी एल्स? So? लेटर टू एडिटर देते उसके हाँ हाँ, गार्बेज के लिए देते लिखे आप, दिखाइए। अभिषेक कुमार सिंह, राजापुर, बोरिंग रोड, पटना, 8,01,000. 11 October 2021. The editor, The Times of India, Patna. Subject: irregular cleanliness of the gardens. Respected sir, with most humbly and respectfully, it is informed you that It is informed that. This is to inform that. This is to inform you that. inform you that I live in Mekula, Rajapur, Boring Road, Patna. There is a big problem of garbage in my Muhalla. It is due to the irregular visiting of municipalities in my Muhalla. We are suffering from a very bad situation due to the bad smell. So I request you to give proper attention on the topic and try to print on the front pages so that the problem of my Muhalla is solved. Once again, I request you to solve my problems as soon as possible. Your thanks to your listeners. ठीक है, यू शो। मैं इसी का मैं दिखा रहा हूँ। मैं उसी का दिखा रहा हूँ। क्या? मैं उसी का कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो यू हैव नॉट रिटन। Alright, next we come to order letter.
what is an order letter? When you want to buy something, you will ask for the inquiry, you will inquire and then you will order. ठीक है, इंक्वायरी आपने कर लिया है और फिर कुछ परचेज करना है तो आपके पास उसका ब्रोशर या व्हाटएवर प्रोस्पेक्टस है उसका आ चुका है और अब आप ऑर्डर करते हैं. So when a buyer needs to order some goods, he writes an order letter to the seller. So what is an order letter? Order letter, जब कुछ खरीदना होता है आपको तो फिर आप बायर को आप लेटर लिखते हैं. The three main parts of the letter are three main parts क्या है लेटर का? The details of the item or the goods being ordered must be clearly stated. मतलब तुमको जो चाहिए उसका उस आइटम का सही तरीके से ऑर्डर का बेस होना, इंफॉर्मेशन होना चाहिए. मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड कि क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, वॉट एवर. इट शुड बी कंप्लीट. इट मस्ट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, मॉडल नंबर इफ पॉसिबल, एटसेट्रा. Second point, the information related to the shipping must also be clearly given. The mode of shipping location and the desired date of the goods to be shipped must be clearly stated. मतलब मोड कैसे आपका गुड्स आपके पास आएगा, कब आएगा, सब कुछ कहाँ आना है, एड्रेस क्या है, वो सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए. तभी गुड्स आपके घर पर डिलीवर्ड या आपके ऑफिस में डिलीवर्ड हो पाएगा. Third point is the inquiry related to payment, whether it is mode of payment, date of payment or terms and conditions regarding payment should be clearly mentioned. So let's look at the format with an example. To the manager, Woods and Worlds, 35 Petal Street, Delhi. Dear sir, placement order for furniture. This person is placing an order for furniture. तो देखिए किस तरह से इसने लिखा है, सब कुछ कितना क्लियरली स्टेटेड है, उसी तरह से आपको भी बताना है. सो एज वी हैव डिस्कस टेलीफोनिकली, मतलब फ़ोन से बात हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने प्लेसमेंट अपना ऑर्डर का प्लेस किया है. ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं. I would like to place an immediate order for the supply of the following set of furniture. उसके बाद कुछ इस तरह से आप बनाएंगे. क्या है, बॉटल नंबर क्या है, नेम ऑफ आइटम क्या है, क्वांटिटी कितना चाहिए. अगर ब्लॉक बनाएंगे या फ्रेम में बनाएंगे ऐसे भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से लिखनी है. तो इस आइटम का चेयर है 25, मॉडल नंबर 1478, चेयर है 12, 2148 कॉन्फ्रेंस टेबल है, कितना है 3, 4615 क्या है, टेबल है, हाउ मेनी इज रिक्वायर्ड 50, एंड 2418 सोफ़ा रिक्वायर्ड. लेटर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे लिखते हैं लोग. एज वी हैव डिस्कस्ड, वी आर सेंडिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹20,000 एज एडवांस पेमेंट. द रेस्ट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. काइंडली शिप द अबव ऑर्डर एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस. तो ये किस एड्रेस से भेजना है, जो कि एड्रेस आप पहले ही लिखते हैं ऊपर में, अबव मेंशन, जो कि ऊपर में ऑलरेडी दिया गया है. काइंडली अडियर टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब कि जो रूल्स है उस पर स्टिक कीजिए, उसी पर रहिएगा. जो हमने कहा, जो टर्म्स एंड कंडीशन कहा है उसी के मुताबिक काम होना चाहिए. वी होप टू रिसीव द ऑर्डर इन 4 वर्किंग डेज. तो इनको चाहिए 4 वर्किंग डेज, मतलब कि वर्किंग डेज में चाहिए, संडे सैटरडे को नहीं चाहिए इनका. ठीक है, थैंक यू. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन लोगों ने बॉक्स बना के लिखा है और भी क्लैरिटी हो जाता है. अदरवाइज सेकंड
जो बॉडी का जो सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन आपका है, सेकंड है दिस इज़ द सेकंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चाहिए और कितनी चीज़ें चाहिए। इसी के आधार पे आप भी कुछ बनाइए सो दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो क्या क्या चीज़ क्लियर है इसमें? हर चीज़, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, और कैसे कैसे पेमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, और कब तक हमको पहुंच जाना चाहिए। लेटर ऑफ कंप्लेन, ठीक है। इंक्वायरी आपने किया है, फिर गुड्स आपने ऑर्डर किया है, और फिर आप हो सकता है कोई चीज़ अच्छा नहीं हुआ, कोई छूटा हुआ भेज देगा, आप कंप्लेन लिख रहे हैं। ऑर्डर ही नहीं आया 4 दिन में, हाँ या फिर ऑर्डर ही नहीं है रिसीव हुआ है सब। हाँ, तो कंप्लेन लेटर कहीं भी कुछ खामी हो जाती है, कहीं कुछ आपको जो मिल रहा है वो आपको सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो फिर आप क्या करते हैं? आप कंप्लेन लेटर लिखते हैं। हो सकता है कि आपने जो टाइम दिया था वो टाइम बीत गया लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो कंप्लेन लेटर क्या? समबडी रीड। Letter of complaint. Suppose you place an order of some item, the quality of promise and the quality of the item received is not the same. मतलब जो कहा गया था, जो क्वालिटी और जो आप रिसीव किए हैं वो मैच नहीं कर रहा है। What will you do? You either want to replace them or want to have it back. How can you do so? This is where the letter of complaint comes into play by writing this type of letters. One must clearly provide the details of the problem case. Tell what action you want to be taken. Provide information like the date of arrivals of orders, order number, or the details of the previous complaint. Give a deadline to respond within. Attach a copy or a specimen of the invoice or any other receipt. Use polite yet elastic words regarding complaint. Never excuse or make any allegation by shelling. Let's look at the format for example. तो कोई किन किन हालात में हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं? सबसे पहले है वन मस्ट क्लियरली प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम फेस। मतलब जो प्रॉब्लम है तो क्लियरली बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, टेल व्हाट एक्शन यू वांट टू बी टेकन। आप बताइए कि आप किस तरह से इसको टेकअप करना चाहते हैं। पैसा वापस चाह रहे हैं, रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं, दैट इज यू हैव टू से। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइक द डेट ऑफ द अराइवल ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर नंबर ऑफ द डिटेल ऑफ द प्रीवियस कंप्लेंट। पहले का भी कोई कंप्लेन है उसको भी डाल दीजिएगा, और अपने लेटर का रेफरेंस नंबर जरूर डालिएगा। गिव अ डेडलाइन टू रिस्पॉन्ड विद इन, और एक डेडलाइन दे दीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, और उसका स्पेसिफाइड कॉपी अटैच कीजिए, उसका इनवॉइस कॉपी अटैच कीजिए और रिसीट अटैच कीजिए, ताकि उनको भी क्लैरिटी हो जाए कि हाँ क्या गड़बड़ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पोलाइट एंड असर्टिव वर्ड रिगार्डिंग कंप्लेन इशू। तो पोलाइट लैंग्वेज लिखना है, और असर्टिव मतलब कि ऐसा कुछ लिखना है कि किसी को ख़राब भी नहीं लगे, और लेकिन अपनी बात भी कह दीजिए। असर्टिव का मतलब होता है अपनी बात को कहने में सक्षम होना, इस तरह से कहना ताकि दूसरे को बुरा नहीं लगे, ठीक है। नेवर एक्सक्यूज और मेक एनी एलिगेशन बाय सेल्फ, और अपने मन से मत सोचिए कि आपका ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ठीक है। कोई भी एक्सक्यूज़ आप अपने मन से मत लगाइए, अंदाज़ा आप लगाना छोड़ दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उनको भी कुछ करने दीजिए। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मेट। पढ़िए। Dear sir, subject complaint against order number S24-201S1147. This is with reference to the order number S24-201S1147 placed on November 17, 2021. The order consists of यहाँ पर प्लेस्ड हो जाएगा। placed on November 17, 2021. प्लेस मतलब जो कि ऑर्डर प्लेस किया गया है उस दिन का। The order consists of letterhead and business card. As per the agreement, we will promise of receiving the order released by November 22, 2021. First of all, the order did not raise in time. Also, the quality of the papers and design selected for business card is not matching with the selected ones.
lot of investments and invoicing, Inconvenience. inconvenience, Inconvenience. and our reputation is at stake in the eyes of our clients. तो क्या लिख रहे हैं कि हम लोग को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और मुझे बहुत हम लोग को परेशानी हुई और हम लोग का रेपुटेशन भी खतरे में आ गया. Kindly ensure that the order will be replaced latest by December 4, 2021. Failing which payment will be stopped or will be cancelled. I sincerely request you to look into the matter and do the needful as soon as possible. Thank you. फेलिंग वेज मतलब नहीं होने से हम लोग पेमेंट को स्टॉप कर देंगे या फिर ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे. फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप और विल बी कैंसल्ड. आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू. अब देख रहे हैं किस तरह से लेटर लिखा जा रहा है. अपनी बात भी लोग कह रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि नहीं होगा इसके अंदर तो हम लोग अपना एक्शन ले लेंगे, मतलब पेमेंट स्टॉप कर देंगे या फिर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे. अब इस लेटर का रिप्लाई भी है. रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट. मान लीजिए आप ही कहीं भेज रहे हैं बिजनेस लेटर्स और आपके पास ऐसा कंप्लेंट लेटर आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करिए. पढ़िए. कोई और पढ़, तुम पढ़ो. वो पढ़ रहे हैं. Suppose sometime you receive the letter of complaint and you want to reply to it. It is most important to try to look after such complaints as they may cost you your organization's reputation. How will you do so? How can you provide better customer service? It is important for you to clearly address the problem and the trouble caused to the customer. Apologizes for the error on your side. अपोलोजाइज मतलब Apologize. माफी मांग लीजिए. Clearly state the course of action you will take for the arising issue and the time until you will do so. Assure the customer for no more future grievances and troubles. Be very clear. ग्रीवांसेस मतलब कि उनको अश्योर कीजिए कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी. Be very clear and specific about every detail. The format of this letter is the same as formal letter format. Read the letter. Dear sir, subject reply to the complaint against order number is 24201 is 1147. This is with reference to your order number is 24201 is 1147 which you placed with your company on November 7, 2021. We sincerely अपोलोजाइज. अपोलोजाइज का मतलब होता है हम लोग माफी मांग रहे हैं. वी आर सेइंग सॉरी. you for the inconvenience caused. Right now we are facing problem with supply from the manufacturers in. Also we are flooded with a large number of orders. We are taking a step in regard to your complaint and we ensure that we will replace the order that is by December 5, 2021. Also, a similar problem does not occur in future again. We would appreciate your support on this matter. And also assure that similar problems does not occur in future again. Will not तरीका लिखने का है. We would appreciate your support on this matter. Thanking you, your truly, manager. तो आज कंप्लेंट लेटर, ऑर्डर लेटर,
रिप्लाई, कंप्लेन का रिप्लाई, Inquiry or complaint. इंक्वायरी, ऑर्डर, कंप्लेन लेटर। एक सीरीज बनाइए ना, पहले आप इंक्वायरी करिए, फिर आप ही उसको रिप्लाई करिए, फिर कोई ऑर्डर करिए, रिप्लाई करिए। तो जितना ज़्यादा लेटर लिखिएगा ना, आगे यही काम ही आने वाला है, बिजनेस लेटर राइटिंग। चलिए, Have I sent this? Have I shared this in your group? Yes. लेटर राइटिंग शेयर नहीं हुआ है। सारे एक ही फाइल में है, सारे एक ही फाइल में सारे। अच्छा, I'll share this. Alright, then that's it for today. So from tomorrow the puja vacations are starting. So enjoy yourself and have a nice puja. Happy Durga Puja. Happy Dasara, ma'am.